Hello and welcome. You're watching the News Hour Agenda Election Special. I'm Padmaja Joshi. All of this week, we are focusing on the Jungle Mahal area of West Bengal, which is seeing back-to-back meetings and sabhas by bigwigs of the BJP and the Trinamool Congress. The reason? Its importance, not just electorally, but also for perception. Remember, it is this area where the BJP made surprise gains in the 2019 Lok Sabha election as compared to the assembly poll before it. Many were left wondering if it is because of the ground level work and mobilization that the RSS has done in this region over the years through its various organizations, the Ekal Vidyalaya being one among them. What is going on is essentially an attack on the idea of equality. यहाँ पे जो बोला जाता है शोषित वंचित जो दलित जाति है आदिवासी वनवासी और जो लोधा संप्रदाय है सब और बोल के उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है. RSS began the attack through their schools. Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. Among the institutions that are run in tribal areas is the Vanvasi Kalyan Ashram, primary schools called Shishu Mandirs, and standalone schools called Ekal Vidyalaya, like the one that I am standing in right now. These organizations have been in the spotlight of late, given that former Congress President Rahul Gandhi had recently compared them, the Sangh-rang organizations, to the radical madrasas of Pakistan. However, the truth about them is far less menacing. In fact, during the time of COVID, when most of the schools shut down, especially here in the areas where as it is access to education is very sparse, the Ekal Vidyalayas have been of special importance to the tribal population. Here, basic education is imparted to the children, beginning with yoga and Saraswati Vandana in the morning, followed by a very rudimentary education in English, Hindi, Bengali, and math. Large tribal population and Maoist insurgency have meant that for long, the access to education was restricted. And it is this vacuum that has been filled by the Sangh. It is their work at the grassroots that has also helped them build a support from the ground up. It's not without reason that even before winning Purulia and Jhargram in 2019 Lok Sabha elections, the BJP had won over 30% of the Gram Panchayats in this area. Sameer Mehto here belongs to Jhargram and has in fact grown up in a 3-generation RSS family. Now, he works with the Ekal Vidyalaya in the tribal area to ensure that the children have at least a basic access to education in this area, which finds itself very, very far removed with a lot of development. Sameer, ये बताइए कि एकल विद्यालय शुरू करने का पूरा मकसद क्या था? एकल विद्यालय शुरू करने के लिए जो बच्चे के जो ये हो रहा है जो सरकारी विद्यालय में नहीं हो रहा है वो एकल विद्यालय में हो रहा है. ले जो बच्चे के पढ़ाई में इसके पहले जो गायत्री मंत्र है, ब्रह्मनाद्य, जो सरस्वती वंदना है, जो उसके सुबह उठकर जो उसके माता पिता है उसको प्रणाम करना है, उसको गुरुजन का क्या मतलब वो जो गुरुजन का
आदर करना है, वही सिखाए यहाँ पर, शिक्षादान करना है। यहाँ पर अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत गणित भी सिखा रहे हैं। क्या कोशिश ये है कि कम से कम हर बच्चे को थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई मिल पाए? हाँ जी, वो जो पढ़ाई लिखाई थोड़ा ही से जो सरकारी विद्यालय में हो रहा है वो होएगा, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पर होगा, जो उसके कोई सरकारी विद्यालय में ऐसा कोई बच्चा है जो वहाँ पर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा से खेल कूद के साथ जो सिखाई दे रहा है, उसके आनंद भी आ रहे हैं, इसलिए वही बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं गया लेकिन एकल विद्यालय में आ रहे हैं। कितने एकल विद्यालय यहाँ पर आप चला रहे हैं इस इलाके में? वो 30 विद्यालय है, पूरा लोधासुली संच है ना, उस लोधासुली संच पे 30 विद्यालय है जो आदिवासी और कोई शाबर इलाका में है, वहाँ पे विद्यालय है। तो यानी कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, लोधासुली जो एक डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ उसके अंदर आप 30 विद्यालय चला रहे हैं ऐसे? नहीं, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में तो स्वच्छ ज़्यादा है, जो लोधासुली में है, वो बीनपुर में है, वो लालगढ़ पे है, वो जामबनी में है, वो जो गोपीवल्लभपुर है वहाँ पे संच है। तो इतना संच से लोधासुली पे 30 विद्यालय, उसमें जामबनी से और 30 विद्यालय है, जो वहाँ पे जो सीलदा में है वहाँ पे और 30 विद्यालय है। ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि जो संघ का काम होता है, जैसे ये विद्यालय चलाना, वनवासी कल्याण आश्रम, उससे जो है बीजेपी का भी बहुत फायदा होता है, आप क्या देखते हैं? नहीं, वो अलग बीजेपी से तो मेरा कोई यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। जो बीजेपी काम वो अलग है, मेरा एकल विद्यालय का काम अलग है। जो संघ का कोई वो काम अलग है, लेकिन थोड़ा से जो मेरा प्रार्थना है, जो यही तो सभी वो अलग है, बीजेपी का एकल विद्यालय का कोई नहीं। Education that is imparted in these Ekal Vidyalayas, but critical for communities where even that is lacking. Shakti Padam Mahato is also somebody who's been associated with the Sangh. He's a Karyakarta of the Sangh since his childhood. Shakti Padam ji, आप जो ये एकल विद्यालय चलाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है और उसको घर वालों को पढ़ाई करने के लिए कोई इच्छा भी थोड़ा कम होता है और उसका साधन भी नहीं है, और बच्चा लोग पढ़ाई करे इसका मन में भी ऐसा नहीं आता है। उसको खाने पीने के लिए टाइम ज़्यादा जाता है, रोजगार करने के लिए, पैसा के लिए उसको बाहर में काम के घूमने जा रहा है, इसलिए बच्चे को पढ़ाई के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा नहीं है। उसको जब हम बोलेंगे धीरे धीरे करके बच्चा अब आ रहे हैं। तो आप घर वाले आराम से मान जाते हैं कौन से वर्ग के वर्ण के बच्चे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे जो बोला जाता है शोषित वंचित, जो दलित जाति है, आदिवासी, वनवासी और जो लोधा संप्रदाय है, सबौर बोल के उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है। पर यहाँ जो सरकारी स्कूल तो है हर गांव में, वहाँ नहीं जाते बच्चे? जाते हैं, कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होता है लेकिन उसका जो अच्छा संस्कार, ये संस्कार इस विद्यालय में दे रहा है। जब सुबह उठकर पिता माता को पैर छूकर प्रणाम करना होगा और ठाकुर के प्रति, विद्या देवी के प्रति प्रार्थना करना होगा, यही सब संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा देता रहा है। और गुरुजन के प्रति नमस्कार करना, श्रद्धा करना, इस संस्कार हम ज़्यादा से ज़्यादा देता है सरकारी स्कूल में, क्योंकि ना अभी उस सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच्चा को खिलाई पढ़ाई और डांस और सारे कुछ उसका साथ दे रहा है, इसलिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ आता है। पर जो लोग इसके जो संघ के जितने आपके एकल विद्यालय, शिशु मंदिर वगैरह हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि वहाँ पर हिंदुत्व सिखाया जाता है। हाँ बोलता है, लेकिन उसको आदमी को हम ऐसा ही बोलता है कि आप एक बार और सामने से नज़दीक आकर देखिए
जो छोटा बच्चा सुबह उठकर पिता माता को पैर छूकर प्रणाम करता है, वो जो हिंदुत्व होता है तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो ठाकुर है, सरस्वती माता हो, उसको वंदन करता है, नमन करता है, ये यदि कोई हिंदुत्व बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चा कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सारे बच्चा सरस्वती वंदना कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, पिता माता को पैर छू रहा है और क्यों को गुरुजन को सम्मान करता है। ये यदि कोई हिंदुत्व होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमको हमारे बच्चा को ही हम ऐसा ही सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अब जितने साल से आप यहाँ पर चला रहे हैं, अब आप ज़्यादा जितने माता पिता हैं आदिवासी वगैरह जो वनवासी हैं, उनको आप ये मना पाए हैं कि अपने बच्चों को कम से कम एक थोड़ी सी शिक्षा दे दें? हाँ, क्योंकि ना जितना साल अभी शुरू हुआ वो हर महीना में पिता माता के साथ एक बैठक होता है, इसको मीटिंग बोलता है। उस मीटिंग में सारी काम को हम डिस्कस करता है, क्योंकि बच्चा के हम क्या क्या सिखाते हैं उसका भी थोड़ा सुझाव हमको उसको भी मांग रहा है। क्या पिता माता का क्या इच्छा है, आपका मन में क्या हो रहा है, आप एक बार बोलिए। दोनों का साथ हमारा बातचीत होता है हर महीना में एक बार उसका साथ हम बैठता है, खुले बैठता है। एक डेढ़ घंटा के लिए बैठक हो रहा है हर महीना में। तो ये जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाई के अलावा आप ये भी कोशिश करते हैं कि आगे जा कर के वो स्कूल कॉलेज में जाएं, उनकी नौकरी वगैरह लग जाए? हाँ, चाहते हैं। उसको हमने पढ़ाई के साथ साथ में खेलाई के लिए विषय में भी हम ज़्यादा ध्यान देता है। वो जो ड्राइंग है वो ड्राइंग भी करता है, और जो बोल रहा है डांस, उसको भी कर रहा है। इस जो शिक्षा में आ जाएगा तो उसका मन जिधर जो जाएगा, ऐसा क्योंकि ना सारे बच्चे पढ़ाई भी करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई खेलने का कोई अच्छा होता है, कोई डांस का, कोई ड्राइंग का, और जो खेती का, जो जिधर लाइन का जाना होगा उसको ही हम सोचता है, क्योंकि वो बड़ा हो करके कुछ ना कुछ करे। Mention, however, that the Ekal Vidyalaya is just one of the many organizations that are being run by the Sangh on the ground. However, most of them refuse to come on camera because they studiously stay away from having any electoral association. Their logic is that their work goes on the ground irrespective of whether there are elections or not. Having said that, yes, the ground level mobilization because of these organizations does stand to benefit the BJP. But to say that Didi has completely lost her hold would be a fallacy at this point. What one must remember is the two factors that will be very important in this area. One is the mobilization on the ground, and second, the anger against the TMC, thanks to low-level corruption, especially in government schemes. The deprivation extends not just to educational facilities, but also to those working in the fields. Ironically, this area has seen the farm leaders come here from Delhi borders and ask people to vote for anyone but the BJP. ये सरकार सिर्फ वोट की नीति जानती है, इसको वोट की चोट देनी चाहिए। वोट मोदी को ना दीजिए, जिसको जी चाहे वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, मोदी को वोट ना दे दो। मोदी देश के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं। खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। अपने ही वोट देंगे ना, अपने कंधे पे बैठेगी फिर। अच्छा, ये बताइए किसको वोट देने की क्या पता, किसी को दे लियो, वो तो यहाँ की जनता अपने आप समझे। But how do farmers here fare? And who do they hold responsible for their plight? In West Midnapur, the mainstay of most households still is agriculture and the farming of paddy. It's significant because this is also the area where the farmers groups who have been protesting so far on the borders of Delhi have decided to enter the poll fray and come and address sabhas and tell farmers to vote for anyone but the BJP. So how do the farmers here take to that message? What is their lot here in Bengal? Let's try and speak to a few of them. आप यहाँ पर किस चीज़ की खेती करते हैं? धान का। अच्छा, ये इस वक्त आपको चुनाव में किसका माहौल लग रहा है, किसकी हवा है? यहाँ का जो महल है अभी बीजेपी का ही महल चल रहा है पूरा।
क्यों? क्योंकि टीएमसी का जो राज चल रहा है अभी, वो लोग जो किया है, जिसका पास सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है, वो लोग अभी करोड़पति बन गया है। इसीलिए अभी जो माहौल चल रहा है, साधारण जनता का जो है माहौल, वो अभी बीजेपी का ही चल रहा है। ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में राकेश टिकैत को जानते हैं? वो दिक्कत को नहीं जानता, वो लगता है वो डाकत है, दिक्कत नहीं है। आप तो एकदम नेता की तरह बोल रहे हैं। आप नेता तो नहीं? दिक्कत मतलब दिक्कत का कोई सरनेम हमको तो पता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको इस वक्त, क्या किसका माहौल, किसकी हवा चल रही है? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, ये तो बीजेपी का हवा चलता है। क्यों? बीजेपी का। आपको पता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में? वो दिल्ली में आंदोलन किया तो हमारा ये बंगाल में आंदोलन तो हुआ नहीं। पर आप परेशान नहीं है? वो कह रहे हैं पूरे देश का किसान परेशान है मोदी से। मोदी देश के लिए जो काम करता तो वो अच्छा ही करता है। तो ये तो ममता दी तो उसको काम नहीं करने देता है। अच्छा, आप बताओ, आप यहाँ पर इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है आपको, क्या होगा इस इलेक्शन में? ये बीजेपी का ये बोर्ड है। अगली जो प्रधान है हमारा, वो बीजेपी का प्रधान है। अच्छा, इसलिए ये बार वो बीजेपी का ही होगा बोर्ड। पर क्यों? आपको क्या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर? जो गांव में सारी ममता ने स्कीम्स दी हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, बंगाल में तो ममता दी में स्कीम तो नहीं काम किया ना। द्वारे सरकार के बारे में जानते हैं? द्वारे सरकार को तो उससे आपका फ़ायदा हुआ है? नहीं, हमारा फ़ायदा नहीं। अच्छा, आप किस चीज़ का खेती करते हो? धान का। उसमें जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ पे आके सभा की थी और बोला है कि बीजेपी को वोट मत दो, नो वोट फॉर बीजेपी, ऐसा बोला है उन्होंने। आपने सभा सुनी है उनकी? क्या आपको पता है कि वो क्या किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं? दिल्ली में सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को मैं सुन रहा है, लेकिन वो जो सभा किया वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो जो ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से सब दुखी है, सारे किसान दुखी हैं, देश भर के किसान दुखी है। नहीं, हमारा किसान दुखी नहीं है। अच्छा, तो आपके प्रधान यहाँ पर हैं, तो आपका बीजेपी का समर्थन करते हैं। आपको पता है किसान सम्मान निधि क्या है? हाँ, पता है। अच्छा, आपको मिलती है क्या? इधर तो नहीं, बंगाल में नहीं है। क्यों? वो अभी जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं करने दिया इधर। दीदी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहा है इधर से। क्या? किसान का तो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो तो भेजना चाहिए। अच्छा, तो भेजा नहीं। क्यों नहीं भेजा है तो मालूम नहीं मेरे को। तो भेजा नहीं, भेजेगा तो हम लोग को मिल जाएगा किसान निधि 6,000 रुपया। अच्छा, आपको पता है कि 6,000 रुपये मिलता है? हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी आएगा, सरकार बनेगा। अच्छा, ये अच्छा नहीं काम कर रहा। क्यों? अच्छा नहीं काम कर रहा, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। किसान मंडी भी नहीं अच्छा कर रहा। हम लोग धान बेचता नहीं है, कम दाम पे धान बेचना होगा। किसान मंडी में जाता है तो दलाल बैठता है इधर। दलाल बैठा है कि ये धान नहीं चलेगा, ये धान चलेगा, उसको 200 रुपया देना पड़ेगा तब ये धान चलेगा। ठीक है, साल लेता है हम लोग 30 रुपया किलो दुकान से, अब धान बेचता है 20 रुपया किलो। एक मेडिसिन का दाम 500 रुपया है। एक मेडिसिन का दाम और खेती के लिए 500 रुपया है। अभी हमने 2 दिन का पहले यूज किया और बैगन बेच रहा हूँ 5 रुपया में और टमाटर 5 रुपया में और सब कुछ 5 रुपया 6 रुपया। यही तो हाल है। ये धान जब झड़ाई करके उठेगा ना हम चासी, तब बोलेगा कि बाहर नहीं धान गया, धान का रेट कम गया, कम दाम में धान बेचो 10 रुपया किलो। कौन बोलता है ये? वो आता है धान जो खरीद करके आता है। धान तो हम लोग को बेचना है किसी को, तो किसको देगा हम लोग धान? कोई पैकार आता है उसको धान देता है कि भैया धान तो दाम नहीं है। क्यों दाम नहीं है? पर ये जो किसान नेता आए हैं दिल्ली से, वो तो टीएमसी को समर्थन करते हैं, कहते हैं कि टीएमसी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी किसान विरोधी है। देखो, चासी का अच्छा काम करो, जो कोई भी पार्टी हो चलेगा, ठीक है। चासी के लिए कोई खड़ा नहीं है। चासी के लिए अच्छा काम नहीं किया। किसान मंडी दीदी बनाया, ये भी नहीं अच्छा किया। अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो मोदी जी क्या बनाएगा देखना होगा। आप बताइए, आपको इस वक्त क्या लगता है यहाँ पर, क्या वोट का क्या
क्या स्थिति है, किसको वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा बीजेपी के। क्यों? बीजेपी का अभी जो तृणमूल का हालचाल है ना, हाँ, वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या वो जो दुआरी कैंप में काम किया, दुआरी में कैंप में हम लोगों ने किया था, बोलता नहीं भैया तुम लोगों का बहुत कागज इधर उधर बहुत गंडगोल है, ये नहीं चलेगा। हाँ, मेरा पिताजी का नाम में खेती है तो उसका नाम में रहने तो हमारा भी आएगा, तो मेरा पिताजी गुजर गया, हाँ, तो उसका बाद में किसका आएगा? मेरे को आएगा। तो हम बोलता है जो हम वारिस सर्टिफिकेट देता है, वारिस सर्टिफिकेट देख लीजिए। हाँ, बोलता नहीं इसको आपका कागज ठीक नहीं है, इसको रिकॉर्ड करने पड़ेगा, ऐसा करने पड़ेगा, वैसा वो सब बताता है। तो जो द्वारे का जो कैंप लगा था उसमें, हाँ उसमें और फिर क्या बोलता ये क्या सम्मान कृषक का जो सम्मान प्रतिनिधि आया था ना, हाँ, उसमें लिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर ऑफिस गया था। हाँ, जाके पूछा था, बोलता नहीं खाली 5 दिन के लिए स्टार्ट हुआ था, बस खत्म हो गया, अभी नहीं मिलेगा। हम बोले क्यों ना अभी मिलेगा? नहीं अभी नहीं, वो हो गया जो हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ देखा, हम जितना तृणमूल का आदमी है वही लोगों को हुआ, हम लोगों का जो बीजेपी तरफ में कोई सीपीएम का तरफ में है वो लोगों को नहीं हुआ। हाँ हाँ, हम तो जाके देख लिया, जो हमारा बीडीओ ऑफिस खड़गपुर में जो है ना, हाँ, उधर में जो एग्रीकल्चर ऑफिस है ना, उसमें गया था, उसको पूछा था, इसका बोलता नहीं अभी। फिर हम 2-3 दिन का पहले गया था पूछने के, बोले क्या चालू हो गया दादा? बोलता नहीं अभी नहीं चालू होगा, वोट का बाद में चालू होगा, ऐसा बोलता है। तो घूम के आया बस, कोई नहीं, ऐसा ही चलता है कि जितना है किसान का ऊपर में होता है, हाँ ज़्यादा। हाँ, तो क्या चलाओ जितना दिन चलेगा। पर ये जो सारी अभी बाकी जो सरकार की स्कीम्स आ रही हैं, ममता दी ने ये भी बोला है कि मोदी सरकार तो सिर्फ 6,000 रुपए दे रही है साल में, हम इससे कहीं ज्यादा देते हैं, आपको यहाँ सरकार राज्य सरकार से पैसा नहीं मिला? हाँ, वो तो पहले जो दिया रहा जो साल में एक बार क्या बोलेगा बोरोसिन में वो देता है, और एक बार क्या बोलता है जो अमन में, हाँ, देता है, वो तो 3-4 हज़ार रुपया मिलता है, वो देता है, वो उसको देता है, और कुछ नहीं मिलेगा। और क्या बोलता प्रतिनिधि, ये सम्मान प्रतिनिधि क्या बोला है, क्या 17,000 पर हेड में मिलेगा। तो हम लोगों ने गया, हम लोगों को नहीं बोलता नहीं, वो तुम लोग खत्म हो गया था बस, तो घूम के आ गया। हाँ, और अभी तो चालू ही नहीं हुआ, बस यही तो सुना था, यही वही जो मिला है। अभी द्वारी कैंप पे गया हम लोगों करने के लिए, और बहुत ऐसा करने के लिए। जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में सुना है आपने? पूरे देश में चल रहा है किसान आंदोलन, दिल्ली में बड़े नेता किसान आंदोलन। नहीं सुना नहीं हम लोग, अभी नहीं सुना है हम लोग। हाँ, इधर में कोई तो किसी का ये नहीं हुआ। पर यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ नंदीग्राम में राकेश टिकैत है, उन्होंने आंदोलन किया, सुना आप उनकी सभा? वो लोग हाँ, सभी इधर का तो सभी लोग नहीं टीवी देखता, कुछ हमने देखा उधर नंदीग्राम में आया था, टिकट। हाँ, वो लोग बोला कि बीजेपी को वोट मत दो। तो वो कह रहे हैं कि एक जो न्यूनतम मूल्य है वो नहीं दे रही है सरकार, उसकी वजह से वोट मत दो। अभी तो दूसरा गवर्नमेंट चल रहा है इधर, टीएमसी का गवर्नमेंट, तो वही तो आपको बता रहा हूँ कि 10 रुपया धान बेच रहा हूँ, 5 रुपया बैगन, 5 रुपया टमाटर, ये सब। Okay, so this is the difference most starkly seen over here between what you perceive as a movement, as an andolan, which is called a nationwide farmers movement, and what the reality is of farmers here on ground. हाँ बताइए, आप क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, ऐसे खेती में, कुछ मैदान में, ऐसे। तो इस बार क्या वोट किसको पड़ेगा? इसको जिसको होगा वैसे ही पड़ेगा, तो हम लोग और कैसे पता चलेगा? तो टीएमसी या बीजेपी या कांग्रेस? जो ज़्यादा वोट होगा वही होगा। आप किसको दोगे? हम लोग तो गरीब को देती हूँ। किसको? गरीब पार्टी है हम लोग। कौन है गरीब पार्टी? गरीब जो पहले था सीपीएम, इस बार जो बीजेपी, ऐसे ही चल रहा हम लोग का। In West Midnapore, the main concerns even now remain of shortage of water, of jobs and government benefits. The thing that upsets most people in West Midnapore is shortage of jobs, and what they feel is shortage of funds
up till the last man. Yes, development has happened, but if you go into the villages inside, people say it's only those who are affiliated to the ruling party who corner all of the benefits. यहाँ पर मिदनापुर में सबसे ज़्यादा आपको अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसा मैडम, मेरा गांव में कोई स्कूल बना है दीदी का पोजीशन में, लेकिन अभी स्कूल छात पड़ने वाला है। स्कूल जब सरकार देता है तो पूरा पैसा देता है ना, खाली ढलाई करके छोड़ दिया है। अभी स्कूल भी ना चालू हुआ, कैसे चालू करेगा? टीचर दे रहा है, लेकिन टीचर आके क्या करेगा? उस छात का नीचे तो ये नहीं होगा। तो तब तो क्या हुआ है? काम तो सब अधूरा रह गया है, काम कोई पूरा ही नहीं हुआ हमारा गाँव में। नौकरी का क्या यहाँ पर? नौकरी का बात यही बोलता है, यहाँ जितना मतलब क्या बोलेगा, जितना लड़का लेकोन पढ़ा लिखाई किया है, लड़का लड़की लेकोन, वो लोग को नौकरी नहीं मिलता है। जितना लोग गांव में नाच गान करता है वो लोग को नौकरी मिलता है। क्या बोलेगा, जो बकरी चराता है उसको नौकरी मिलता है। मतलब क्यों? मतलब क्यों? दीदी दे रहा है। ये तो 2-4 दिन से डाक के अभी वो लोग को कभी 15 लोग को देता है, कभी 10 लोग को देता है। जितना लोग मतलब वो गाना बजना, फिर क्या बोलेगा, जो गाना बजना करने वाला जो भाता मिलता है ना, भाता से जो क्या बोलेगा, बीजेपी का लड़का लोग जो भाता मिलता है, ये लोग को, वो लोग को नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन दीदी का काम जो लड़का लोग करता है, लड़का बोलो लड़की बोलो, उसका बात जो ये करता है, वो लोग को नौकरी मिल जाता है। तो हमको मालूम नहीं है अभी ये सरकारी नौकरी है या दीदी का नौकरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या माहौल है वोट को लेके? वोट को लेके आप इसके माहौल है जो बीजेपी का ही माहौल है। क्यों? कारण मतलब वो जो दीदी का जो है, लेकिन वो तो सब गायब कर दिया, टाका पैसा सब कुछ, वो गरीब आदमी को नहीं मिलेगा रुपया। पर इतना वो उन्होंने बोला है कि द्वारे सरकार किया है, आपको घर जा जा के आपको सारी स्कीम्स दी हैं, और वो स्वास्थ्य साथी बनाया है जहाँ पर, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ है? नहीं, फ़ायदा हुआ, लेकिन तो अब जो गांव में जो आजकल जो बीजेपी का जो झंडा है, तो बहुत धमकाने का मतलब चल रही है दुनिया में, और सब कुछ चाहता है जो अब लोग देश में मोदी आ जाएगा, इसीलिए सब लोग मोदी का साथ झंडा उठाती है। लेकिन दीदी बहुत काम किया, काम ने अच्छा किया, लेकिन मेरा बात है वो जो दीदी जो किया सब कुछ ठीक किया, लेकिन जो गांव में जो पार्टी था वो लोग कुछ सामान को कुछ निजरा आखिर घुसा के चलता है, लेकिन वो वोट लेने का बाद ले लेगा, लेकिन बाद में नहीं। This is the constant refrain you'll hear, the cornering of government benefits, the cornering of jobs, the cornering of money. So even if the money is being given by the TMC government, ultimately it's only their workers who stand to benefit. आप क्या काम करते हो यहाँ पे? आपको क्या लगता है इस वक्त वोट को लेके माहौल क्या है? जो है ठीक है, हिंदी को तो जानने। अच्छा, TMC या बीजेपी या कांग्रेस, क्या लगता है? बीजेपी। When people express anger about being shortchanged, especially in central government schemes, it is these examples that they cite. A shauchalay, a toilet that has been built here in the village from a grant that was given by the center. They say they never really got the money in their hand because it was siphoned off by the middlemen. ये पैसा जो है आपको मिला क्या पैसा शौचालय बनाने के लिए? शौचालय का मेरा हाथ से पैसा नहीं दिया, वो जा काम किया वो कॉन्ट्रैक्टर किया, हाथ से पैसा नहीं दिया। मेरे को हाथ से 1100 रुपया दे दिया उसको, पहले बोला 1100 रुपया दो मेरे को, तुम्हारा शौचालय बना देगा। 1100 टका दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर आया, ऐसे काम किया। सो जो सरकार से 12-13 हज़ार रुपए मिलता है वो किधर गया? टका नहीं दिया, और आपको 1100 रुपए देना पड़ा। हम मेरे को मैं उसका 1100 रुपया दिया, 1100 वो कॉन्ट्रैक्टर उसका बनाया। तो कौन है ये कॉन्ट्रैक्टर? उसके पास पैसा क्यों गया? उसका बोला जी सरकार देने पड़ेगा, उसका बाद काम होने पड़ेगा, तो इसलिए पैसा दे दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उधर है मेरा ग्राम का। So the allegation is that there are these people who are party ka aadmi, members of the ruling party. They function as contractors, and instead of giving the money that comes from the center to the beneficiaries, the contractor is the one who keeps the money.
in fact charges these people. Like this gentleman said, 1100 rupees were asked of him in order to make this toilet in his house. And none of the money, the grants that come from the center, are actually passed on to the beneficiary. All of it goes into the pocket of the contractors. And it's this, the reason that they're given a short shrift is another factor which contributes to people's anger. But all the grouses aside, one group that consistently speaks up for Didi is her core women support group. And that is no different in Midnapore as well. In my experience of covering elections, I have always found women are very important voters, but they usually remain voiceless and behind the scenes. Even in Bihar, where Nitish Kumar had a substantial number of women voters, they were those who were heard only on the day of polling. Now there's one state where I saw a massive departure from that type, and that is of West Bengal, where the woman voter doesn't just speak on polling day, but even before that is assertive and very, very certain. आप बताइए यहाँ पर मिदनापुर में आपको क्या लगता है किसका जीत होना चाहिए और बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? हम तो ममता दीदी को ही चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इलाके में जो खड़ा हुआ है उसकी वजह से हमें बहुत कुछ मिला है। पहले पानी नहीं था, पानी आ गया, सड़क नहीं था, सड़क आ गया, उसके बाद करंट नहीं था, करंट भी आ गया। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे मतलब जो उन्नति जो हो रहा है, तो हमारा जो पंचायत है वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो टीएमसी का ही पंचायत, हाँ टीएमसी का ही है वो। तो पर बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं वो फिर भी किसी पार्टी को करें, बट जो लेडीज़ होती हैं वो टीएमसी बोलती हैं। ऐसा कभी देखा है अपने घर में होते हुए कि कोई घर के मेल्स किसी पार्टी को और टीएमसी को सारी लेडीज़? हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, जिनको उनको मतलब जो हाँ पैरों पे खड़े होने के लिए वो बहुत सारी सुविधाएं दी है ना, तो वो अपनी तरफ से क्या फ़ायदा हुआ उससे? हाँ, हमें भी फ़ायदा हुआ ना, हम भी ग्रुप में है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, तो वहाँ से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि हाल ही में वो जागो जो योजना है उसमें हर साल हर एक ग्रुप को 5,000 करके दे रहे हैं। उसके बाद आरएफ मिल रहा है 15,000 का। उसके बाद बहुत कम मतलब इसमें आपको क्या बोलें इंटरेस्ट में हम लोग को लोन मिल रहा है, जो कि आप अगर ऐसे मतलब बाजार में मार्केट में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, 10% की चीज़ तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, इतनी सारी महिलाएं क्यों हैं यहाँ पर? अभी जब हम टीएमसी की सभा तो सारी महिलाएं यहाँ पर आ गई, क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है? आप टीएमसी को क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि टीएमसी माने लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो दीदी भी ममता दीदी भी लेडीज़ है और लेडीज़ के लिए बहुत कुछ सोचता है। लेडीज़ के माने उसको पैरों पे खड़ा होने के लिए, उसको भविष्य के लिए, लेडीज़ लोग के लिए जैसे स्कूल में लेडीज़ के लिए माने रूपोश्री। ये बताइए मेरे को, जब ममता दीदी जो करता है माने अन्य कोई नेता अभी तक हम लोग नहीं जानता जो ऐसा किया। पर जैसे कि जब भी नहीं ऐसा, पर जब जैसे कि बहुत आगे भी सोचता है। जैसे कि जब बीजेपी बात करती है तो कहते हैं कि हमने आपको उज्ज्वला योजना दी या फिर हमने शौचालय बनवाए, और यहाँ टीएमसी वो देगा। वो लोग सिर्फ बात ही करता, हम लोग जो जानता है वो बात ही करता, काम में नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे शौचालय नहीं मिला है क्या? शौचालय मिला, एक दो जो नहीं मिला, ये भी माने जो मिला वो दीदी का ही मिला। अच्छा, गैस सिलेंडर नहीं मिला? गैस सिलेंडर माने एक दो तो गैस सिलेंडर मिला, लेकिन इधर जो लोग काम माने जो लोग रहता है वो अभी गैस सिलेंडर खरीद के लिए उसका पास पैसा नहीं है। माने इतना महंगा घर मिला, लेकिन वो जो शौचालय और घर जो बहुत 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 ज़रूरत है वो मिला हमको। मतलब शौचालय जो खुद से नहीं बना सकता वो सरकार यानी कि हमारा जो पंचायत है वो करवा दिया। देखिए घर अभी भी हो रहा है, जो भी घर हो रहा है सब पंचायत ने हम लोगों को दिलवाया। जिसके पास मिट्टी का घर था वो अब मतलब हाँ पक्का घर हो गया है। तो वो किससे मिला आपको? केंद्र सरकार से मिला है या राज्य सरकार से? देखिए हमको तो इतना ही मालूम है कि हमारा जो पंचायत है, हमको जो भी प्रॉब्लम होता है हम पंचायत के पास आते हैं। तो पंचायत तो टीएमसी से ही है, तो हम तो यही सोचेंगे ना, तो टीएमसी से ही मिला है। अच्छा, और बताइए, और कोई बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों? हमारे वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी मतलब उनकी सरकार ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ जब से आई हूँ मुझे बीजेपी नहीं था,
बीजेपी ये हाल में हुआ है। बीजेपी पहले यहाँ पे बीजेपी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ममता दी ही थी। टीएमसी का सरकार ही था यहाँ पे, तो इसलिए टीएमसी सरकार जब से यहाँ पे है हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, बल्कि और अच्छा हुआ है। पानी का प्रॉब्लम था, सड़क की प्रॉब्लम थी, ये सब ठीक हो गया है। इसलिए हमें तो ममता जी की सरकार ही ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बोली जाती है कि एक धर्म की बात बार बार बोली जाती है कि यहाँ पर जो एक हिंदू धर्म है उसके खिलाफ या उसका साथ नहीं देते हैं टीएमसी, उसके बारे में आपको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे यहाँ हमारे यहाँ भी हर जाति के लोग हैं और यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सब अपने हैं, यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई नीचू नहीं है, यहाँ सब है। यहाँ किसी के साथ कोई जाति वाति का कोई भेद नहीं है। तो ये जितना जो ये जय श्री राम की बात बोली जाती है वगैरह, उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं? मैम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान जी का नाम है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको कोई पॉलिटिक्स में लेके इसका गलत इस्तेमाल करे तो ये उनकी प्रॉब्लम है। जो भी लड़का कर रहा है तो हमारा कोई कुछ भलाई कर रहा है, आज तो हम नहीं देख पा रही। जितने भी लड़के बीजेपी कर रहा है, যারা बीजेपी করছে দেখতে কি পাচ্ছ কোনো ছেলেরা আমাদের উপকার করছে বলে? করছে কি? कोई नहीं कर रहा है। बस लॉन्डो को देख लो, गाड़ी का जय श्री राम कर रहा है, पर कोई हमारा कुछ कहाँ पे झगड़ा होगा वो नहीं आएगा कि हम लोग इसको बचाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। कौन जाएगा? हमारे पंचायत टीएमसी ऑफिस में सब आएगा, ऐसा ऐसा हुआ है, वो मीटिंग होगा, वो हम लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा, बस सब ठीक है। तो आपके घर में आप सिर्फ महिलाएं सपोर्ट करती हैं टीएमसी को या आपके घर के जेंट्स भी सपोर्ट? मेल भी है, मेल फीमेल सब है। मेल भी है। अच्छा, सब अच्छा है। अच्छा, तो आपके घर पूरा परिवार सपोर्ट करता है? हैं, पूरा परिवार। अच्छा, तो अगर आपको चॉइस दी जाए, कोई यहाँ पर लेफ्ट या कांग्रेस का कोई समर्थक है यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर सब टीएमसी है। अच्छा, जो दीदी को ये चोट लगी है, इसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो शायद चोट खुद ही से लग गई है, उससे आपके भावना पे कुछ फर्क पड़ता है कि दीदी को चोट लगी या कैसे चोट लगी वगैरह? है उसका तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नहीं ऐसा क्योंकि दीदी इतना साल हो गया है, तो दीदी इतना सारा काम करे, तो छोटे से काम के लिए उसको पैर में चोट लगी है तो नाटक नहीं हो सकता ना। हमको तो ऐसा ही लगता है, नाटक नहीं हो सकता, जो भी सच में हुआ है, कोई करवाया है शायद, ऐसा तो हमको ही लगता है देख के जितना पता चल रहा है। So what does one gauge from what we have seen and heard so far? For one, the TMC's woman voter is very vocal and clear about her choice and the reasons for it. However, the people who refuse to talk to us on camera is telling and a story in itself. However, those who did speak to us, among them there is a resentment about government benefits that were given but selectively depending on party affiliation. All in all, Khela Hobe does sum up the mood of this election very beautifully, but in the end, it's the voter who might end up giving a penalty shot. With video journalist Gopal Dutt Sharma in Purulia, Padmaja Joshi for Times Now. In East Midnapur that gets a lot of headlines, which is that of Nandigram for its fight between Shubhendu Adhikari and Mamata Banerjee. But there are other constituencies in that district as well. What is their thinking? What are their demands? What are their needs? Siddhant found out. We are in Egra Vidhan Sabha and this falls under East Midnapur district. Now, this is a known bastion of TMC from last 3 times. TMC has been winning Vidhan Sabha elections here from this particular seat. Now this time BJP has given ticket to Arup Das to contest elections and TMC has given ticket to Tarun Maiti, and it is the first time that he will be contesting elections. Now last time in 2016 Vidhan Sabha elections, TMC got 1,20,000 votes and the other party got 90,000 votes. So last time also there was a close fight. This time BJP believes that they would be able to win this particular seat
because the demographics here are in favor of Bharatiya Janata Party. So the star campaigners like Nitin Gadkari and others are coming to this seat for the campaign purposes, for the road shows and rallies. खेलेगा तो खेला तो होगा जरूरी, खेला होगा, 2 आदमी का खेला होगा। कौन कौन? यहाँ में जो है दादा हो दीदी है, ये तो खेला चलेगा। खेला चलेगा। लोकल मुद्दे क्या, स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे तो है वही, कोई बात नहीं है। माज वाला है, कोई सुविधा है नहीं, ठीक है। टीएमसी नहीं दादा। आप बताइए, आप लोगों का मत किसके साथ रहेगा? जो काम अच्छा करेगा। जो काम अच्छा करेगा। तो इस बार यहाँ से ईगरा की सिर्फ बात करें तो बीजेपी को वोट देंगे या टीएमसी, क्योंकि 3 बार से जीत रही टीएमसी के साथ ही जाएंगे? वोट के बाद मालूम पड़ेगा कौन किसको चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि परिवर्तन के लिए वोट करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? आपको क्या चाहिए कि जो आपका कैंडिडेट हो वो आपके लिए क्या करे? कैंडिडेट जो जिसको अच्छा देखेगा, काम अच्छा करेगा, और नया कैंडिडेट सबको चाहिए। नया कैंडिडेट चाहिए। तो मुझे क्या मुद्दे क्या है? आपको क्या चाहिए? परिवर्तन चाहिए? नहीं, परिवर्तन नहीं, दीदी ठीक ही है। दीदी ठीक है। दीदी ठीक ही है। लेकिन जो चुनाव में जो ये चल रहा है, ये तो मोदी का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम लोग का सोचा है ये इलेक्शन में दीदी ही रह जाएगी। दीदी को कोई नहीं हटा सकेगा। दीदी तीसरा बार के लिए मुख्यमंत्री रहेगा। तो यहाँ का कैंडिडेट भी अच्छा है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ का जो सिटिंग कैंडिडेट है उनकी तो डेथ हो गई थी। हाँ जी, वो डेथ होने के बाद हम लोग का जो कैंडिडेट आया है वो कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। उन्होंने इस एरिया के लिए उनका बहुत सपोर्ट भी है।